بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو سن کر ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے خدا پر کتنا یقین رکھنا چاہیے۔ ہم جتنا یقین رکھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری توقع سے بھی زیادہ نوازتا جائے گا۔ سمندر کے کنارے سنسناتی ہوائیں کسی راز کی گواہی دے رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے تھے، مگر ایک شخص، ایک اجنبی، خاموشی سے گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قدموں میں ٹھہراؤ تھا، چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عام انسانوں میں نہیں دیکھی جاتی تھی۔ دوسری طرف ایک محل نما حویلی کے اندر جشن کا سماں تھا، ہنسی مذاق، آوازیں، مگر ان دیواروں کے پیچھے ایک ایسا ظلم چھپا تھا جس کا تصور بھی روح کو کانپنے کے لیے کافی تھا۔ اچانک ہوا میں ایک چیخ گونجی، ایسی چیخ جو سننے والے کے دل پر نشتر کی طرح گرتی ہے۔ دریا کی موجیں یکدم بے چین ہو گئیں، جیسے کسی بڑے طوفان کا انتظار کر رہی ہوں۔ ماہی نگر گاؤں ظلم کی یہ داستان دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہی نگر گاؤں دیکھنے میں تو خوبصورت تھا، ساتھ اس کے ایک بڑا سمندر تھا جو اپنی چلتی لہروں اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ لوگوں کو اس سمندر کے کنارے سکون ملتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو وہ رات ظلم کو آواز لگاتی اور وہ ظلم ہر چیز کو چھپا لیتا جس کا کبھی کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ایک چیز جو انہیں دکھ دے رہی تھی، وہ اس دن وہ ہوا جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کو کبھی بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ ماہی نگر گاؤں کی خوبصورتی ہی لوگوں کو معلوم تھی، مگر رات کا وہ ظلم کسی کو معلوم نہ تھا۔ دیکھنے والا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دل ہار بیٹھتا، مگر جب رات ہوتی تو اسے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ دوسری طرف وہ گاؤں جو تھا تو بے رنگ، مگر وہاں اچھے دل کے لوگ رہتے تھے، محبت بانٹنے والے، سچے اور پکے ایمان والے، جن کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی، سچے اور کھرے لوگ تھے، جھوٹ سے نفرت، نیکیوں سے محبت اور رشتے میں پیار دینے والے۔ کیونکہ اس گاؤں میں وہ انسان، وہ معتبر شخصیت، وہ ہستی رہتی تھی جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ بابا درویش نام کی طرح بھی وہ درویش تھے۔ وہ لوگ انہیں جنگلوں میں عبادت کیا کرتے دیکھا کرتے تھے۔ ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہ تھا، اور وہ ایسی جگہ عبادت کرتے جہاں لوگ جانے سے بھی ڈرا کرتے تھے، مگر انہیں صرف اللہ کا ڈر تھا، اور وہ اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول رہتے، روزہ رکھتے، نمازیں پڑھتے اور رب پر توکل رکھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بزرگ صاحب جنگل میں گئے، عبادت کرتے کرتے ان کو نیند آ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی، بے چینی ایسے ہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھ کر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ سفر بھی اس طرح شروع کرتے ہیں کہ نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی پینے کو۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ پر آ کر رک گئے۔ رات ہو چکی تھی، صبح سے چلتے چلتے وہ تھک چکے تھے۔ ایک چشمہ بہہ رہا تھا، وہاں سے پانی پیا۔ پاس ہی سیبوں کا ایک درخت تھا جس پر مزیدار سیب لٹک رہے تھے۔ بزرگ سیبوں کو دیکھ کر خوش ہوئے، وہاں سے انہوں نے سیب کھائے، پانی پیا اور سو گئے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتا رہا اور وہ اپنا سفر کرتے رہے۔ آخر کار وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں اللہ انہیں لانا چاہتا تھا۔ ایسی گاؤں پہنچے جو بہت ہی خوبصورت تھا، جہاں اللہ کی ہر نعمت تھی، اور اس کی خوبصورتی کی بڑی وجہ وہ سمندر تھا جو اپنی لہروں سے ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ بزرگ اس گاؤں کی خوبصورتی دیکھ کر زبان سے اللہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ یہ گاؤں واقعی خوبصورت تھا جس کا نام ماہی نگر تھا۔ جیسے ہی بزرگ نے اس گاؤں میں اپنا قدم رکھا تو وہاں کا موسم بدل گیا، سمندر کی لہریں دھڑ دھڑانے لگی۔ جیسے ہی بزرگ نے غور کیا تو ایک دم سے ان کے دل میں خوف آیا کہ یا اللہ، خیر تو ہے، کیا یہ ایسی جگہ ہے جو میرے رہنے کے لیے نہیں ہے؟ مجھے تو اپنے سفر کا پتہ ہی نہیں۔ جیسے ہی بزرگ یہ بات کرتے ہیں، وہ لہریں تھم جاتی ہیں اور واپس وہ سمندر پرسکون ہو جاتا ہے۔
बुजुर्ग नहीं जानते थे कि इस गांव में मुनकिर लोगों की तादाद ज़्यादा है। बुजुर्ग गांव में दाखिल हुए, सबसे पहले उनकी नज़र एक घर पर पड़ी जहां बहुत कुछ बकरियां बंधी हुई थीं और एक औरत बकरियों का दूध दोह रही थी। उसकी बेटी चारपाई पर कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। देखते ही बुजुर्ग का दिल खुश हुआ और वो सीधे उस घर की तरफ गए। सलाम करने के बाद वो औरत कहने लगी, बाबा जी, लगता है आप इस गांव के नहीं हैं। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? वो औरत जान चुकी थी कि यकीनन बुजुर्ग कोई अच्छे इंसान हैं और एक नूरानी चेहरे के मालिक हैं, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे, जिस वजह से उनका चेहरा नूरानी था। वो औरत देखते ही हैरान रह गई और कहने लगी, यकीनन आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आपका मुबारक कदम हमारे घर में आया है। बुजुर्ग कहने लगे, मैं मेहमान हूँ, चंद दिन का यहाँ रुकूंगा, फिर अपना सफ़र शुरू करूँगा। हो सके तो मेरी बेटियों जैसी ही हो तुम, मुझे अपना बाबा समझ लेना। वो औरत मुस्कुराकर कहने लगी, आप भी मेरे बाप की तरह हैं और आप जैसे नेक इंसान हमारे घर में होंगे तो कितनी बरकत हो जाएगी। इस तरह वो औरत उनके घर रुक जाते हैं वो उस औरत के घर, और वो औरत बेवा थी। उसके खूबसूरत नौजवान 16 साल की बेटी थी। बुजुर्ग ने गौर किया तो उस औरत के अंदर एक दुख छुपा था और वो उसकी बेटी भी सहमी सहमी थी। जिस तरह बुजुर्ग एक रात उनके घर गुजार देते हैं, आज ही की रात जब बुजुर्ग की आंख खुलती है तो लड़की रो रही होती है और उसकी माँ उसे चुप करवा रही होती है। अरे बेटी, खामोश हो जाओ, मेहमान बुजुर्ग हमारे घर ठहरे हुए हैं। अगर उन्होंने हम पर ये जुल्म सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? ये जुल्म सह कर हम जी रहे हैं, किसी दूसरे को तो इसका पता न चले। चुप करो, तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा। ये तो बरसों से इस गांव में चला आ रहा है, हम कैसे जुल्म से बच सकते हैं? बुजुर्ग ने जब उनकी बातें सुनी तो उनके दिल में एक खौफ बैठ गया कि न जाने कौन सा ऐसा रिवाज था जो उस लड़की की माँ उन्हें बताना नहीं चाहती थी। सुबह होते ही बुजुर्ग ने उस औरत को बुलाया और कहा, मैंने रात को तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की बातें सुन ली थी कि तुम पर ऐसा कौन सा जुल्म होता है। बुजुर्ग ने गौर किया तो देखा कि उस औरत की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रो पड़ी और कहने लगी, बाबा जी, क्या पूछते हैं आप? ये सब्र ने का ही तूफान आएगा जो हर चीज़ तबाह कर देगा। बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हें मुझे बताना होगा। अरे आप मेहमान हैं, मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल सकती। चांद की 14वीं रात आने वाली है और वो दर्द मैंने बर्दाश्त करना है। मेरा शौहर मर गया है, मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरी जवान लड़की और मैं अकेली घर में रहते हैं, हमारा कोई और नहीं है। चांद की इस 14वीं रात को हमारे ऊपर वो जुल्म होना है, हमें कोई नहीं बचाएगा। मैं नहीं चाहती कि आप इस मुश्किल काम का हिस्सा बने, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। बुजुर्ग कहने लगे, अब तो मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे नहीं बताती कि मामला क्या है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो क्या पता मैं तुम्हारी मदद भी ना कर सकूँ, और अगर तुम मुझे बता दोगी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो औरत कहने लगी, अरे अल्लाह के प्यारे बंदे, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप बुजुर्ग हैं, मेरी मदद तो कोई भी नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। वो बहुत जालिम है, आप इन लोगों से वाकिफ़ नहीं हैं। आपको बज़ाहिर तो ये काम खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन इस गांव में छुपा वो जुल्म जिसमें रातें सज जाती हैं, जुल्म की चादर ओढ़ लेती हैं और हर तरफ जुल्म ही जुल्म होता है। हवेली की वो दीवारें जुल्म छुपाए बैठी हैं, हर रात वहाँ महफिल सजती है, रक्स होते हैं। ये कहते कहते वो औरत रोने लगी। बुजुर्ग कहने लगे, मेरी बच्ची, मुझे बताओ क्या मुश्किल है? मुझे अभी तक तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। इसी दौरान उसकी बेटी आई और बोली, बाबा जी, मैं बताती हूँ आपको, अम्मी तो ऐसे ही आपको नहीं बताएंगी। बात दरअसल ये है कि इस गांव में गैर मुस्लिम रहते हैं और यहाँ इस गांव में ये रस्म बरसों से चली आ रही है और ये सिर्फ उन लोगों को पता होती है जिनके साथ वो जुल्म होने वाला होता है। हर चांद की 14वीं रात को इस गाँव में खूबसूरत लड़की को इस जालिम अमीर शख्स की हवेली में भेजा जाता है और रात को इसके साथ वक्त गुजारता है और इसकी इज्जत नीलाम करता है। न जाने
जाने कितने बेबस माँ बाप ये जुल्म बर्दाश्त कर चुके हैं और अपनी बच्चियों को जालिम दरिंदे के हवाले कर देते हैं। बरसों आज तक जो भी इनके सामने आवाज़ उठाता है तो मौत के सिवा इसका कोई अंजाम नहीं होता। इसलिए डर कर लोग छुपे बैठे हैं और ये जुल्म अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। जब बुजुर्ग ने उस लड़की की बातें सुनी तो एकदम से उन पर गुस्से की कैफियत तारी हो गई। उनका गुस्सा देखकर औरत कहने लगी कि न जाने कितने लोगों को ऐसा गुस्सा आया, उनकी गैरत जाग उठी, लेकिन जब वो इस जालिम के सामने आए तो उसने ऐसा जुल्म किया कि देखने वालों के लिए ये इबरत का मकाम बन गया। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाएं, खुद को मुश्किल में मत डालें। बुजुर्ग कहने लगे, तुमने मुझे पनाह दी, तुमने मुझे बाप की जगह समझा, तो अब मुझे जान की कोई परवाह नहीं। मैं तुम लोगों की खातिर आवाज़ उठाऊंगा, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। बताओ ज़रा वो जालिम रहता कहाँ है? वो लड़की कहने लगी, मैं आपके साथ चलती हूँ, अम्मी तो हमेशा डरती ही रहती हैं। वो बहुत खुश हो रही थी कि पता नहीं कितने अरसे से तोहमत मैंने दिल ही दिल में दुआ की थी कि मेरे अल्लाह चांद की चांदनी रात से पहले पहले मेरे लिए अपनी मदद भेजना, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। और अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरी दुआ कबूल हुई है। बाबा जी आप मेरी मदद के लिए आए हैं, यकीनन अल्लाह ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा होगा। बुजुर्ग उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मेरी बच्ची परेशान मत हो, तुम्हारा ईमान बहुत पुख्ता है, तुम सिर्फ अल्लाह से डरो और दुआ करो। इस तरह वो लड़की जालिम के पास उस बुजुर्ग को ले गई जो कि गांव के बहुत अमीर और रईस थे। हर कोई उनसे डरता था। वहां पहुंचते ही वो अमीर बेहया शख्स कहने लगा, ए लड़की, आज कोई चांद की 14वीं रात है जो तुम आई हो, अभी कुछ दिन पड़े हैं। वो लड़की कहने लगी, नहीं, ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी दहलीज पर इस तरह रात को आऊँगी। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी उस हवेली पर। मेरे साथ आज अल्लाह ने इस बुजुर्ग को भेजा है। तो वो रईस आदमी हंसने लगा, अरे हाँ लड़की, ये बुढ़ा शख्स तेरी मदद करेगा, अक्ल तो ख़त्म नहीं हो गई। इसी दौरान दरवेश कहने लगे, खामोश हो जाओ। इस शख्स ने जब ये सुना तो वो वापस हंसता रहा, लेकिन वो बुजुर्ग कहने लगे कि अब तुमने बहुत जुल्म कर लिया, अब और जुल्म नहीं चलेगा। लोगों देख लो, ये मुझे मना कर रहा है। ए बुढ़े शख्स, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। मुझे लगता है तुम ये रिवाज नस्ल दर नस्ल जो चलता आ रहा है, तुम्हारे कहने पे हम इसे ख़त्म कर देंगे। ये कभी नहीं हो सकता। इस गांव में हर चांद की 14वीं रात को हवेली में एक लड़की रक्स करती है और फिर वो बिस्तर की जीनत बनती है। तुम अगर इसे रोक सकते हो तो जाओ यहाँ से। बुजुर्ग कहने लगा, मैं नहीं जाऊँगा, तुम इसको हाथ लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथ काट डालूँगा। वो जालिम हंसते हुए बोला, ए बुढ़े, अपने दिमाग का इलाज करवाओ और ए लड़की, जाओ इस बुढ़े को यहाँ से ले जाओ, वरना ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसी दौरान वो लड़की बुजुर्ग को लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसकी माँ कहती है, खुदा के लिए अपनी जान को मुश्किल में मत डालें, मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाएं। बुजुर्ग कहने लगे, बेटी, अब ऐसे अल्फाज मुँह से मत निकालना, मैं तुम लोगों को इस मुश्किल से निकाल कर ही जाऊँगा। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। इस जान का क्या फ़ायदा जब ये जालिम अपनी आंखों से देखे और आवाज़ ना उठाएं। हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि तन्हा छोड़ दिया जाए, डर कर भाग जाओ। ये कभी नहीं हो सकता। मरेंगे तो तुम लोगों के साथ ही मरेंगे, वरना ये जान किसी काम की तो नहीं। बुजुर्ग की ये पुख्ता ईमानी बातें सुनकर वो लड़की रोने लगी। बाबा जी, मुझे यकीन हो चुका है कि हम जीत जाएंगे। बुजुर्ग कहने लगे, बेटी फिक्र न करो, अल्लाह ताला की ताकत सबसे बड़ी है, वो हर चीज़ पर कादिर है और इन काफिरों की अकल ठिकाने लग जाएगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। 14वीं रात की चांद आने में भी अभी कुछ वक्त था। वो वहीं पर क़याम पजीर थे। एक दिन बुजुर्ग लड़की के साथ समंदर के किनारे आते हैं। वो लड़की पूरा दुख भरा वाक़या बुजुर्ग को सुनाती है कि न जाने कितने अरसे से ये अहकाम इस गांव में चले आ रहे हैं। ये जालिम न जाने किस किस को अपने जुल्म का निशाना बनाते हैं। ये तो ऐसे जालिम हैं, न गांव में किसी को आने देते हैं, न बाहर जाने देते हैं। आप यकीनन इस गांव में एक वसीला बनकर आए हैं और अगर कोई और आवाज़ उठाता है तो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है। इसलिए लोग झूठी खुशी लेकर चेहरे पर फिरते हैं, अंदर अच्छा
गुमान रखते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गौर किया कि समंदर उनकी आवाज़ सुन रहा हो, उनका दुख महसूस कर रहा हो, क्योंकि कभी लहरें तेज़ होने लगी। बुजुर्ग लहरों को देखकर कहने लगे कि ए लहरों, इतना भड़क क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा जुल्म की दास्तान सुन रही हो। ये जुल्म तो तुम्हारे सामने उन लोगों पर होता है, तो क्यों नहीं तब उभरती? अब क्यों हमें तंग कर रही हो? इसी दौरान समंदर दोबारा थम जाता है। बुजुर्ग कहने लगे, बेटी, देखते हैं तकदीर क्या फैसला करती है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, लड़की डरती जा रही थी। हर रोज़ वो सूरज एक नया दर्द लेकर तलू होता और फिर खामोश हो जाता। पूरा गांव जानता था कि आज चांद की 14वीं रात है और आज वो हवेली इस गंदगी से सजेगी, रक्स होंगे और न जाने किस गरीब की इज्जत नीलाम की जाएगी। और वो रईस मुनकिर शख्स खुश होता और ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब इस गांव में वो होने वाला था जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ पहले की तरह था। अब लड़की और उसकी माँ सोई हुई थी। बुजुर्ग जब ढूंढा गया, उसकी बेटी और माँ बेटी दोनों ने मिलकर, तो उन्हें वो कहीं ना मिले। लड़की उदास हो गई, उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी, लगता है बाबा जी हमें झूठी तसल्ली देते थे, अब वो डर कर भाग गए। हमारी मदद कौन करेगा? हमारी मदद तो कोई इंसान भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम खुद को तैयार कर लो, रात को तुम्हें वहाँ जाना होगा। लड़की कहने लगी, अम्मा, हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी, मर जाऊँगी लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगी। और फिर अचानक वो बुजुर्ग उनके सामने और कहने लगे, मैं जा रहा हूँ इस रईस के पास, इसे ललकार कर कहूँगा कि अगर आज से ये जुल्म बंद ना किया, बल्कि सबके सामने ऐलान करो कि वो ये जुल्म हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुजुर्ग उस औरत और उसकी बेटी को साथ लेकर उस रईस की हवेली पहुँचे थे। गाँव के बहुत सारे लोगों को भी बुजुर्ग ने बुला लिया था, यहाँ तक कि पूरा गाँव इकट्ठा था। लोग बहुत खुश थे कि कोई तो आया हमारे लिए। आज तुमने ये अहद करना होगा कि ये गुनाह तुम नहीं करोगे और खुद को सीधे रास्ते पर लाओगे। ये गंदी रस्म तुम अपना कर जो कुछ हासिल करते हो, ये सब कुछ छोड़ दोगे। तो वो कहने लगा, ये हमारे शैतान की रज़ा है जिसकी हम पूजा करते हैं। वो शैतान नाराज़ हो जाएगा हमसे, और हम नहीं चाहते कि हमसे हमारे शैतान नाराज़ हो, क्योंकि वो गैर मुस्लिम लोग थे, वो शैतान की पूजा करते थे। बुजुर्ग को और गुस्सा आया, कहने लगा, ये कभी नहीं हो सकता। और रईस आदमी सिरे से बोला, ये हो जाएगा, तुम सामने से वार करो। इस दौरान बुजुर्ग जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हैं। रईस शख्स को गुस्सा आता है और गुस्से से आग बगोला हो जाता है और फिर कहता है, बुजुर्ग, तुम्हारे साथ ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था। इतना कहते ही सिपाहियों से कहता है, इसे गिरफ्तार करो और बहते समंदर में फेंक दो। इस दौरान सबके चेहरे खौफजदा हो गए। रईस आदमी क्या कह रहा था? बुजुर्ग को समंदर में फेंकने का हुक्म दे रहा था। वो औरत रो कर कहने लगी, मत करो, ये जुल्म हमारे मेहमान हैं, गलती से ये हमारे घर रुके थे, हमें क्या पता था कि ये इस जुल्म का निशान बन जाएंगे। बुजुर्ग, मैं आपसे कहती थी, मत कीजिए ये अपनी जान पर जुल्म। अब ये हमारी मेहमान थे, तो अब ये उन पर जुल्म हो रहा है। बुजुर्ग कहने लगे, लेकिन मैं ये जुल्म ख़त्म करूँगा, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। बुज़दिल इंसान, तेरा खौफ था, तेरी ताकत थी जो तुम मुझे समंदर में फेंक रहे हो। रईस हंसते हुए बोला, अरे बुढ़े, बस करो, जब तुम्हें समंदर की मछलियाँ खाएंगी तो इनसे ये बातें करना कि तुम इस गाँव को बचाने आए थे। वो जालिम घमंडाना तौर पर मुस्कुराने लगा। गांव में खौफ छा गया, हर कोई डर गया, क्योंकि वो जालिम ही था। रईस कहने लगा, अब हर कोई हमारे साथ समंदर के किनारे पर आएगा, अगर कोई ना आया तो उसका अंजाम भी इस बूढ़े जैसा होगा। सब डर गए और सब इसके साथ समंदर के किनारे पर आ गए। अब वो समंदर जो बहुत ही वसी, बहुत गहरा था, जिसकी लहरें खौफ से उभरा करती थी, लोग तो यही कहते कि अब पता नहीं क्या होगा। सब रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। रईस ने उन्हें इसीलिए इस मकाम पर बुलाया था ताकि सबके दिलों में और खौफ बैठ जाए और उसके सामने आने वाला हर शख्स आने से 100 बार पहले सोचे। और फिर देखते ही देखते उसने लोगों से कह दिया, अपने लोगों से, कि इसे उठाकर समंदर में फेंक दो। और फिर साथ ही वो औरत बैठी थी, रो रही थी, चिल्लाए जा रही थी, ए बाबा, आप क्यों आए? अरे बेटी, मना करती थी, इनका मुकाबला कोई शख्स नहीं करता। बेचारे बुजुर्ग शख्स न जाने कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, काश मैं उनको बचा सकती। वो बहुत दुखी हो गई और फिर उन्हें समंदर में फेंक दिया गया। उनकी बेटी उससे रोते हुए घर ले गई। लड़की रो रही थी। जैसे जैसे रात करीब आती जा रही थी, लड़की का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
لگا۔ لڑکی نے اسی دوران اپنی ماں کو اٹھایا اور پھر اس کے سینے سے لگی رونے لگی، کہنے لگی اے اللہ کے پاک کلام، میں نے تجھے اپنے سینے میں بسایا ہے۔ اور پھر اپنی ماں کے سینے سے لگے رونے کے بعد اٹھی، قرآن پاک اٹھا لی، اپنے سینے سے لگا اور پھر کہنے لگی اے اللہ کے پاک کلام، میں نے تجھے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اے اللہ کے پاک کلام، میں تیری نمازیں پڑھتی ہوں، تہجد عطا کرتی ہوں، تو نے میری مدد بھیجی، لیکن نہ جانے ان بزرگ کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوا۔ اے اللہ تو مدد بھیج، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، میرا صبر ٹوٹ جائے گا، میں نا امید ہو جاؤں گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں ایسی بنوں۔ اب رات ہو چکی تھی، سپاہی آ چکے تھے لڑکی کو کپڑے دینے کے لیے کہ ابھی تیار ہو جاؤ۔ لڑکی کی ماں نے ٹوٹے دل سے اسے تیار کیا، وہ لباس جو رئیس بھیجا کرتا تھا وہ لڑکی کو پہنایا گیا۔ اب تو لڑکی کی ماں کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے، ماں آنسو بہاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے اپنا صبر کھو دیا، زوردار آواز میں آسمان کی طرف دیکھ کر بولی اللہ میں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں اور مرتے دم تک تیرا نام لیتی رہوں گی، میری عزت تیرے سپرد ہے، میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں، تو ہی آج ظلم کو روک دے گا، ختم کر دے گا اور اس بے گناہ بزرگ کے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لے گا۔ وہ تیرا نام لینے والا بندہ تھا اور مدد کی نیت سے ان ظالموں نے اسے بھی سمندر میں پھینک دیا۔ روتی عورت اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی، چاند اپنے جوش میں تھا کیونکہ آج چاند کی 14ویں رات تھی، ستارے چمک رہے تھے، رات بالکل صاف تھی، سمندر کی ہلکی ہلکی لہروں کی آوازیں آ رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف سکون تھا، لیکن رات ایک ظلم چھپائے بیٹھی تھی، وہ آنکھیں رو رہی تھی جو ایک ٹوٹی ہوئی ماں کی آس تھی۔ دوسری طرف حویلی میں وہ رئیس اپنی شاہی کرسی پر بیٹھا تھا، شراب کے جام بھی لے رہا تھا، رقص کی پوری تیاریاں مکمل تھی، گاؤں سے بس اس لڑکی کا آنا باقی رہ گیا تھا۔ باقی حویلی کے قریب وہ لڑکی پہنچ چکی تھی، اچانک گاؤں میں عجیب سی آوازیں آنے لگی، سب گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، باقی بھی خود بخود کام رکنے لگے۔ گاؤں والوں کے سامنے ایک خوفناک منظر تھا، سمندر کی لہریں ابھرنے لگی جیسا کہ سمندری طوفان آ رہا ہو، لیکن پانی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا، لہریں بڑھتی جا رہی تھی، سب گاؤں والے کانپ اٹھے کہ یا اللہ یہ کیا ہے۔ وہ عورت اپنی چارپائی پر بیٹھی تھی، کہنے لگی بس کرو بس کرو، اچھا تو تب ہوتا کہ سب کچھ برباد کر دیتا، یہ سمندر ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا، یہ گاؤں اسی لائق ہے، یہ ظلم تو ہم نہ دیکھتے۔ لیکن وہ عورت بھی حیران ہو گئی، سمندر میں عجیب اشر مشر شروع ہو گئی، وہ ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی، گاؤں والوں کے ساتھ کھلے میدان میں جا پہنچی۔ دوسری طرف وہ بھگی جو اس لڑکی کو حویلی کے دروازے پر پہنچا چکی تھی، لڑکی حویلی کے اندر داخل ہو گئی اور اندر سے دروازہ بند ہو گیا، نہ جانے اندر کیا ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ خوف سے بے خبر تھی۔ جس سمندر میں ہلچل مچی تھی، لوگ کانپ اٹھے، یا اللہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسے شخص کو ڈبویا گیا جو نیک انسان تھا۔ اور وہ عورت کہنے لگی میں اب جان چکی ہوں کہ اب اس گاؤں کے زوال کا وقت آ چکا ہے، یقیناً اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ گاؤں کے لوگ ڈر گئے، وہ کہنے لگے تم پاگل ہو گئی ہو، ہمیں بھاگنا چاہیے، لگتا ہے سمندر پھٹ کر ہمارے اوپر آ جائے گا اور یہ پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ عورت ہنستے ہوئے بولی کیا کہتے ہو تم لوگ، یہ گاؤں تباہ ہو جائے گا، ہم تو ہر روز ہی تباہ ہو رہے ہیں اور آج ایک ہی دن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اچانک سمندر میں ایک بڑی مچھلی نظر آئی جس کا سائز بہت بڑا تھا، وہ تیرتی ہوئی آ رہی تھی، لوگوں کے دل خوف سے لرز گئے، یہاں تک کہ وہ عورت بھی خوف سے کانپ اٹھی۔ مچھلی کا سائز بہت زیادہ بڑا تھا، جیسے ہی وہ اپنے وجود کو پانی میں ہلاتی، پانی کی لہریں اور زیادہ تیز ہو جاتی۔ مچھلی سیدھا اس گاؤں کی طرف آ رہی تھی، گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا، ہر کوئی ڈر کر بھاگنے لگا، جیسے جیسے مچھلی قریب آ رہی تھی لوگ بھاگ رہے تھے۔ ادھر حویلی میں موجود لوگ اس خوف سے بے خبر تھے کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی دوران حویلی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک ملازم باہر جاتا ہے، جیسے ہی اس نے باہر کے آدمی سے وہ خوفناک خبر سنی تو دوڑتا ہوا آیا، ارے سب لوگ سنو، گاؤں میں تباہی آ رہی ہے، سمندری طوفان آ رہا ہے، نہ جانے وہ گاؤں کو کھا جائے گا اور پتہ نہیں وہ کون سی بلا آ رہی ہے جو سیدھا گاؤں کو کھانے آ رہی ہے اور سمندر کی لہریں ابھر رہی ہیں۔ اس دوران سب ڈر گئے، رئیس وہیں سب کچھ چھوڑ کر باہر بھاگ نکلا، وہ لڑکی بھی ڈر کر بھاگ چکی تھی۔ سب لوگ گاؤں میں پہنچ کر وہ خوفناک منظر دیکھتے ہیں، مچھلی بہت قریب آ چکی تھی اور اس کا سائز بھی کافی بڑا تھا، وہ مچھلی تباہی مچاتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ مچھلی کی پیٹھ پر وہ بزرگ درویش بابا بیٹھے ہیں تو وہ تمام لوگ ایک دم سے کانپ اٹھے، اس رئیس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور پھر گاؤں میں افراتفری مچ چکی۔
वो मछली सीधा उन लोगों पर हमला करने लगी जो कि मुनकिर थे। वो हवेली पर भी हमला करती और इसे उलट पुलट देती और फिर धीरे धीरे गांव की तबाही शुरू हो जाती है और आखिरकार पूरे गांव में पानी भरने लगता है और रईस आदमी को वो मछली अपना शिकार बनाती है और चिबा चिबा कर खा जाती है। लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन आज हर जालिम को उसके जुल्म की सज़ा मिल रही थी, जो कुछ उन्होंने किया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मछली ने उन्हें कहीं ना भागने दिया और चिबा चिबा कर उन तमाम लोगों को लगता था चुन चुन कर खा रही है जो कि मुनकिर थे। बुजुर्ग उसकी पीठ पर बैठे थे जिंदा और सही सलामत। कुछ लोग बच गए थे जो शरीफ और नेक लोग थे, जिनमें वो औरत और लड़की भी मौजूद थी। इसी दौरान बुजुर्ग मछली की पीठ से नीचे उतरते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे। मछली वापस समंदर में चली जाती है। बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटी देखा तुमने, अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी तनहा नहीं रहते। ये सब तुम्हें तुम्हारे यकीन का सिला मिल रहा है, बल्कि मेरे अल्लाह ने मेरे भी सब्र का इनाम दिया, मुझे भी बचाया है। जब उन्होंने मुझे समंदर में फेंका तो मैंने दुआ की है, अल्लाह मैं इस गांव में तेरे मजलूम बंदों की मदद के लिए आया था, उनके हक की खातिर आवाज़ उठाई और मेरा अंजाम ये हुआ। ए अल्लाह, अगर आज मैं वापस गांव में ना गया और आज काम की गांव वालों की मदद ना की तो वो लोग काफिर खुश हो जाएंगे और हमेशा के लिए हमें झूठा समझेंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ए अल्लाह, तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इल्तिजा को सुना। उन्हें समंदर में जब फेंका गया तो एक मछली ने उन्हें साबित निगल लिया, लेकिन वो कई अरसा मछली के पेट में जिंदा रहे। और ए अल्लाह, मैं भी तो तेरा एक मामूली सा बंदा हूँ, तेरा नाम लेता हूँ, मेरे अल्लाह तूने भी मेरी मदद करनी है। उस वक्त ये कहकर मैं पानी में डूब गया था, लेकिन मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ। अचानक मैंने खुद को एक मछली की पीठ पर बैठा हुआ पाया और वो मछली गाँव की तरफ आ रही थी। मैं जान चुका था कि अल्लाह ने मेरी मदद की है, ना सिर्फ मेरी बल्कि इस गाँव की भी मदद भेजी है। गांव के लोग रोने लगे और रोते वो लड़की बुजुर्ग के गले लग जाती है और वो औरत कहती है, जब तक जिंदा रहूंगी आपकी खिदमत करूंगी, आप मेरे बाप और मैं आपकी बेटी। इसी दौरान गांव के हर शख्स के दिल में ईमान की रोशनी फैल चुकी थी। सबको यकीन हो चुका था कि अल्लाह की मदद और वसीले ऐसा पहुंचा करते हैं, बस बात यकीन की होनी चाहिए। जब हम अल्लाह ताला पर यकीन रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह हमारी हर मुश्किल को आसान फरमाएगा और अल्लाह का हम सब पर करम होगा। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत फरमा देगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।